So, today's video is about basically we're gonna rant about our exes. So, there was this guy I used to date who told me that you seek for attention because your mother is dead. And you still stayed with him for how many years? उसके बाद 2.5 years. Damn. Self-respect. ऐसे ही चबा गई. So yeah, guys, we are not gonna judge. We are not gonna So judge. listen what you don't judge. Yeah. Yeah. Chal, Pratak, what do you wanna say? After our breakup, he said, जितने भी amount of पैसे मैंने तेरे ऊपर खर्च किए वो तू मुझे वापस दे. 3.5k. If you are watching this, But I first of don't all, get it. एक मिनट. No गाली ये वीडियो पहले बता रही हूँ मैं. First of all, screw you. Second of all, I want my money back. Third of all, go. And I also got to know from other people. He will be asking that money क्योंकि उसके पास उसके stuff खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं. What kind of stuff? I'm not. Bro was with someone who used to buy ganja. Wow. Sell ganja. Sell ganja. Wow. Basically a drug dealer. Yeah. You dated a drug dealer, Chatak. How do you feel about this? My dad is a bop. That's the most funny part, भाई. अगर तेरे पापा को पता चलता. अगर मेरी I love Video you, Papa. play. नहीं यार. अंकल को पापा इसलिए मैंने छोड़ा पता है आपको. पैसा देने वाला. जो बनाना दिमाग लगा रही है. नहीं हूँ क्या जो मेरे एक्स के बारे में कुछ मेरे एक्स ने सबसे ज्यादा बुरा क्या किया मैं बताती हूँ. चिल्ला दे. मेरे एक्स ने मेरा अकाउंट हैक कर दिया था. पहला वाला मेरा भी अकाउंट. गया. XYZ. XYZ, okay. I used to date this guy called XYZ. He was my first ever boyfriend. Not boyfriend, but वो childhood वाला प्यार. Not even प्यार, but हाँ? प्यार नहीं था भाई. And after a while we broke up because apparently I realized I'm in love with another guy. and it's unfair to this XYZ person that I'm in love with another person and I'm still with him. So I broke up with him, saying that I still have feelings for someone else. I did say that. तो मैं झूठ बोल के तूने break up किया. And then पैसे तो नहीं मांगे. and then after a while मेरे ट्यूशन में another guy with the same name XYZ. I found him cute and then apparently a while back I got to know that he liked me back. So we started dating. But I realized कि भाई ये बहुत ज़्यादा stressful situation हो रहा है. घर पे पता चला बहुत फट लगने वाली है. मेरे ट्यूशन टीचर तक पता चल गया था. तो I was like कुछ नहीं हो सकता. तो I started ghosting him even after being in a relationship. वो वेट करता था ट्यूशन के बाद मेरे से मिलने के लिए. And I used to ignore him. ऐसे मैं ट्यूशन चली जाती थी. ट्यूशन में तो obviously बात नहीं कर सकते थे. तो एक महीना मैंने ghost किया. फिर मैंने भाई this is not even red flag, ठीक है. and उसके बाद मेरे दोस्त लोग ने उसको कुछ तो ये स्कीम करके उसको बुलाया मेरे बिल्डिंग के नीचे. एंड उसने पूछा क्या सीन है. मैंने बोला ब्रेकअप करना. आई डोंट थिंक सो दिस कैन वर्क करके मैं चली गई. I feel bad for him. एंड एक साल बाद ही हैक माय अकाउंट एंड आई वाज लाइक ठीक है मेरे 1.4k फॉलोअर्स थे. That's the worst thing an ex has did to me. But इसका ब्रेकअप होते ही I went back to my XYZ, the OG XYZ. मतलब तुझे एक तो सेम नाम के लड़के पसंद है. सेकंड फिर उसके बाद हुआ तो तू उसी के पास मैं क्या हुई. Then what happened? उसके बीच में और 2 लड़कों को डेट की थी. वो तो ऑनलाइन था इसलिए I won't even say that because मैं काउंट भी नहीं करती उसको. उसके बाद I said यार XYZ मेरे से ना हो नहीं रहा है. मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए. We get back together but मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए. तो उसने बोला चल ले ले ब्रेक. तो I was like wow कितना अंडरस्टैंडिंग बॉयफ्रेंड है. लेट्स गो. 2 महीना ब्रेक लिया. एंड वो 2 महीने में this XYZ started spending time with my so called best friend, ex best friend. And apparently they got so close that जब मैंने पैचअप के लिए पूछा bro is like नहीं यार I don't feel the same way about you anymore and इसने मेरे को छोड़ दिया.
फिर उसके बाद आई वेंट बैक टू माई ओजी लव, जिसके बारे में ये वीडियो में बात नहीं करना चाहती. एंड अ फ्यू years back this XYZ person became my best friend. हाँ, अभी की फीलिंग बता रही हूँ. अभी तो झगड़ा हो गया इसलिए मेरा थोड़ा कट ऑफ हो गया, बट he became my best friend. तो we were in a very good term, but ये terms में आने से पहले there was this phase where we were talking and he was that kind of best friend जो कुछ भी बोल देता था मजाक पे, यार तू कितनी मोटी है, but I'm only saying it as a joke, ऐसा वाला व्यक्ति था वो. तो he said कि तू इतनी गंदी है कि तू प्यार के भी worth it नहीं है करके. Yeah, this is the worst thing an ex has actually said to me. तो जो मैं इन लोगों का सुनती हूँ मुझे I'm like okay मेरे exes काफी अच्छे, तो I don't wanna diss them on my public YouTube account. यार तो बड़ा नॉर्मल सा भूल गया. I stayed with him even though बोल दे we are not judging ना, वो judge कर रहे हैं, नहीं करेंगे. even though मेरे को एक थाप मारा, एक नहीं actually बहुत सारा, and उसके बाद I stayed with him for like another 2 years. And जब हम उसको बोले थे कि तुम जाओ अपने फ्रेंड्स के सामने ये चीज़ एक्सेप्ट करो, कि वो लाइक कि पब्लिक में आई वुड एक्सेप्ट एनीथिंग आई हैव डन बट नॉट दिस बिकॉज मेरा इमेज खराब हो जाएगा. अच्छा, So apparently, he asked me कि let's go on a break, and me being very understanding वाली बंदी कि ठीक है चलो let's go on a break. जब हम ब्रेक में थे, I asked him कि are you okay, are you fine, blah 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 blah. I kept on texting him. मतलब ये नहीं कि एक बार 5-6 टेक्स्ट क्या पता डाला भी हो, but when I was just like checking up on him. बाद में that banda got high, and then when he got high he was stalking me, and stalking करते समय he found some pictures about me and my best friend, guy best friend. हम दिवाली पार्टी में थे, ठीक है, एंड इट वॉज अ वेरी नॉर्मल पिक्चर जहाँ पे वो मेरे साइड में खड़ा है एंड देन मेरा हाथ ऐसा है. नहीं, दिवाली पार्टी नहीं था, वो फेयरवेल का पिक्चर था. मेरा हाथ, दोनों हाथ यहाँ पे है, उसके हाथ भी एक हाथ पॉकेट में एक हाथ बाहर है. एंड देन दैट मदरफकिंग बिच थॉट, सॉरी मैंने कर्स किया, बट दैट फकिंग बिच थॉट कि उस बंदे ने लाइक मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मेरे कमर में हाथ पकड़ा. एंड उस बात में he got furious, and then it's like कि तेरे वो पिक्चर में वो जो है ना, तुझे क्या लगता है वो सही है ना? मैं क्या क्या आई एम सॉरी, क्योंकि as far as I know myself, I don't let anybody touch me except मेरा बंदा. गलत साउंड कर रहा है वो, ठीक यार. and I still stayed after the break got over. इसके बाद तू वापस गई उसके बाद? This is why I don't get कि girls प्यार में अंधे कैसे हो सकते हैं भाई. Because प्यार भी नहीं था वो मेरा. हाँ, rebound था भाई. So basically हर लड़की को चाहिए होता है कि उसका बंदा should be like emotionally connected या ऐसा प्यार करे, but there is this thing कि सबका अपना love language होता है, ठीक है. And his love language was physical touch. हाँ. Literally. So basically he was like कि my love language is physical touch, and physical touch is not like हाथ पकड़ना, हक करना, it's basically physical होना was his love language. Physical torture करना 24/7. Bro was not lying when he said that. हाँ, and I was like कि what do you mean by that? मतलब he was like कि मतलब कि I love you, but अब वो चीज़ सिर्फ physical touch के थ्रू दिखा सकते हैं. Physical touch. Guys, I didn't tag. उसके बाद तो I stayed with him like for 3 years. By the way, जो जितने भी सारी बात हुई वो एक ही लड़के के बारे में. Yeah, exactly. मैंने तो मेरे 10 मिनट के टॉक में मैंने 5-6 बंदों के बारे में बात भी करते हैं. इन लोगों के पास एक घंटा भी तो ना, तो भी नहीं खत्म होगा इनका स्टोरीज. I hope this kind of love never finds me. I hope I never get this kind of guy in my life. पुराना वाला घर जो है, which is like around
10 किलोमीटर मेरे नए वाले घर से। तो बेसिकली हम जब जिम जाते थे तो हमारा बहुत ऑन एंड ऑफ होता था, तो हमारा झगड़ा चल रहा था। एंड टू मेक हिम फील सिक्योर व्हाट आई डिड वाज, हम अपने पुराने वाले घर पे गए जहाँ पर एक ऑलरेडी रेंटर्स लोग रहते थे एंड वो लोग बता सकते थे मेरे घर पे, जिनको बता दिया था। एंड उस शर्त पे इट्स सेड ना कि तुमको एक अपने फैमिली के स्पिरिट्स फील होते हैं कहीं कहीं। तो मेरे को उस वहाँ पे अपनी मम्मी का स्पिरिट फील होता था, तो हम लेके गए थे, ठीक है, उसको। एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट कि ओ माय गॉड ऐसा ऐसा। एंड आफ्टर 10 days कुछ वापस से लाइक उसका दिमाग छटका एंड ही वाज लाइक कि तुम ऐसे ही लेके जाके लोगों से सिंपैथी लेती हो ना, तुम तो सारे लोगों को लेके जाती होगी। अब इसका देख तेरा थिएटर का तूने CGPA देखा छात्र, तू बोले आई टेल यू, मैंने मेरी अपेरेंटली 5 एक्स जो थे मेरे, जिनको मैं डेट भी नहीं की, वो लोग के बारे में मम्मी को कैसे बताई। Apparently there was this guy that I used to like since I was in first grade. बचपन से ही ऐसी है तू। 10th स्टैंडर्ड में आके मैं नहीं 9th में आके मैंने उसको कन्फेस किया एंड apparently bro like me back. So I was like just because मेरा स्टोरी तुम्हारे जितना ट्रॉमेटिक नहीं है, तुम लोग ऐसा करोगे मेरे साथ। Apparently this guy which is also my very good friend now, वो शिफ्ट हो रहा था कहीं और मेरे घर से आई गेस 1 घंटे का ट्रैवल था, तो इट वॉज अ वेरी इमोशनल काइंड ऑफ थिंग फॉर अस। which याद रख बाद में ना happened is it was a big deal, तो he's like for once and last time के लिए हम लोग जाएंगे, क्या बोलते हैं डिनर के लिए जाएंगे करके। तो अकेले तो आई कांट आस्क बिकॉज घर पे पता नहीं है तब तक। घर पे अभी भी इज लाइक अ वेरी गुड फ्रेंड। कौन सी क्लास में थे? मैं 9th में थी, वो अकेले डिनर पे जाने का सोच रहे थे। तो ऑब्वियसली आई एम विद हिम, I wasn't with him by the way. I wasn't with him. I was actually, we were dating. We were not dating, we were so much in love with each other, at least I was. I mean उसका हाँ उसने बोला है but ऐसा बोला नहीं है, तो I don't know, तो but we were not together basically situationship था। तो घर पे तो पता नहीं है, घर पे ही स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, जो लाइक मेरे भाई को बहुत ऐसा, मतलब मेरा भाई का बहुत अच्छा दोस्त था, वैसा सब था। मेरा भाई उसको बड़ा भाई मानता है, वैसा है, दोस्त नहीं बोल सकते, मैं मेरा दोस्त था। हाँ, तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ डिनर करने गए। वी हैड अ ग्रुप ऑफ लाइक 5-6 पीपल, सब उसके एज के थे और मैं अकेली मेरी एज की थी, और मेरा छोटा भाई वो बड़ा था तेरे से? 3 साल बड़ा था। हाँ, तो सब मैं मेरे से 3 साल बड़े वाले ग्रुप में हम लोग खाने गए थे, लंच खाने गए थे। एंड उसके बाद मैं मम्मी को पूछने वाली थी डिनर के लिए, ठीक है, गई नहीं थी, परमिशन मांग रही हूँ, मम्मी मुझे डिनर के लिए जाना है, लेट्स नेम हिम ABC शिफ्ट हो रहा है, ऐसा ऐसा है। तो हमसे तो प्यार करती है ना उससे, मेरा दिल क्योंकि उससे पहले तो घर पे बात हुआ नहीं है कभी प्यार के बारे में, बॉयफ्रेंड के बारे में, तो दिल लिटरली इधर आ गया था। मैं मम्मी आप क्या बोल रहे हो, ये सब क्या होता है, जस्ट बिकॉज मैं मम्मी को ये करने लगी, गैस लाइट करने लगी कि मम्मी जस्ट बिकॉज हम लोग अच्छे दोस्त हैं आप ऐसा बोलोगे। तो उनसे हम भी ये सब मदर नोज एवरीथिंग, हम लोग भी ये सब एज क्रॉस करके ही आए, वी ऑब्वियसली नो ऐसा वैसा करके। तो फिर अपेरेंटली मेरी मम्मी ने चैट्स पढ़ लिया था हमारा। एंड तेरे को पता है, तुम लोगों को पता है, मेरे को ना इंस्टा का रिस्ट्रिक्शंस था, 10 बजे के बाद आई कांट यूज इंस्टाग्राम, ऐसा वाला था। हाँ, फिर मैं मम्मी को थी, मम्मी मेरे को बहुत पढ़ाई करने का है, 12 बजे के बाद मतलब मेरे को ना लेट तक पढ़ने को बोल जाएगा, मैं पढ़ लूँगी। एंड मम्मी के फोन में यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ पढ़ने के लिए, एंड मैं स्नैपचैट में उससे चैट करती हूँ ताकि चैट छूट जाए। तो सब तरह के कांड किए मैंने, एंड ये सब हुआ, एंड क्या बोलते हैं चले गए। तो आई एम लाइक नाउ इट्स हाई टाइम, मम्मी को ऑलमोस्ट पता चल गया, मैं और नहीं छुपा सकती। तो मैं बस में बैठ के ये सब सोच रही थी स्कूल से आते टाइम। तो बेसिकली मेरी मम्मी स्कूल में टीचर थी, बस से आते टाइम सोची थी आई लाइक बताओ कैसे चालू कहाँ से बोलूँ। मेरा भाई आगे बैठा था, मैं बोली इधर आ, कुछ बताना है मेरे को।
पक्का बता कि तू मम्मी को नहीं बताया। पहले तो उससे ट्रस्ट बिल्ड करना था ना। बोले तेरे को पता है ABC है ना, उसको वो और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। एंड मेरा भाई ऑन 9th क्लाउड, भाई हमने ओ भाई खत्म। वो क्या बोलते हैं भाई, मेरा भाई इसका क्या लगेगा, साला हाँ ये कर गया ब्रदर इन लॉ। ओ भाई ऐसे इतना खुश हो गया। फिर बस से हम लोग स्टॉप पे उतरे एंड लाइक मम्मी कुछ बोल रहा है मेरे को, तो बोल दिया कि ABC है ना, उससे प्यार करती है। नाइन्थ में प्यार एंड जेन्युइनली प्यार ही था, बट हाँ। तो मम्मी इज लाइक हाँ पता था मुझे। आई लाइक मम्मी थोड़ा रिएक्शन दे दो, तो मतलब आप अप्रूव करते हो? मुझे अभी तो देखते हैं कितना चलता है, फिर देखेंगे बाद में का, बट हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। फिर चालू मैं मम्मी को बोलने लगी, मम्मी 7th में मैंने इसको डेट किया था, मम्मी 8th में मैंने इसको डेट किया था, 9th में इसको किया था। एंड देन उसके बाद एक साल या कुछ महीनों बाद मैंने लाइक वी हैड अ थिंग एंड वी ब्रोकअप भी नहीं बोल सकते क्योंकि रिलेशन था नहीं। तो मम्मी मेरे को इतना सुनाई है तूने इतने अच्छे बंदे को छोड़ा कैसे। एंड उसका गिल्ट अभी भी गिल्ट ट्रिप पे डालती है मम्मी, बट ठीक है। You're such a nice guy. Okay, moving on. So we were going on a date and like जब हम कार से जा रहे थे तो फिर like I was talking about कि like I'll be preparing for NIFT, I'll be doing this, I'll be doing that. तो उसमें मैंने just NIFT का एग्जाम दिया था। Then I was like I don't know मैं पास हो पाऊंगी या नहीं हो पाऊंगी, वो डाउट हमेशा रहता है ना। And then he's like कि यार तो I don't think so कि तू हो पाएगी because it's just like it's such a competitive exam ना, तो I don't think so कि तेरा कोई chance है। And then फिर उसके बाद जब हम जा रहे थे obviously भाई मुझे बुरा लगा उस बात पे because NIFT is a little big thing for me। तो जब हम गाड़ी में थे तो obviously मेरा mood change हो गया। Then he's like गाड़ी हाँ तो गाड़ी का कौन सी गाड़ी होती है? चलाता है। लड़कियाँ चलाते हैं। फिर उसके बाद he just like कि get out in the middle of the road highway में he's like कि भाई highway नहीं पे था। वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो फ्लाईओवर टाइप का कुछ तो था। and he's like कि get out and I'm like हाँ, मैं पहले प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि ये क्या बोल रहा है मेरे को। get out and I'm like the fuck। अगर मुझे पता I swear to God अगर मुझे रास्ता पता होता ना मैं निकल भी जाती गाड़ी से। मेरे साथ तो 4 बार हुआ है। The fact that these both can relate to each other is even more traumatic. Why? You know you have moved on when you can laugh about it. मतलब इतने बड़े ट्रॉमा को भी मजाक बना she'll never get a man who could love her like I do. I could never. मेरा was the भाई opposite. वैसे प्यार से तो अच्छा है। मेरा was the opposite. हम लोग ने जब खत्म किया चीजें तब I was like मेरे को इससे अच्छा बंदा कोई मिल ही नहीं सकता है मेरे लिए, and I know it. अब See, you get that feeling कभी like जब like move on वाला stage होता है, but when you move on, when you have moved on, तो कभी फील नहीं होगा वो लड़का अच्छा नहीं होगा, but you still feel that way मतलब वो लड़का सच में अच्छा था। हाँ exactly. मैं तो And it is your loss. हुआ क्योंकि this guy knows everything about me, literally everything. वो मेरे कौन को सा था OG X हाँ ABC ABC हाँ it's like वो तब भी अभी भी है जो तू निफ्ट वाला थिंग बोल रहे, पता है आई फील मेरे पेरेंट्स के बाद वही एक बंदा रहेगा जो उतना लाइक मेरे लिए एक्साइटेड था। हाँ exactly। तो मेरे को एक्साइटेड नहीं था except my family। माँ बाप वो जो except my family See the and thing is friends। ना कि there is a relationship जिसमें you grow with the relationship, like तुम अपने teenage से puberty hit करते हो, and that is the like main वाला relationship, भले वो कितना भी toxic हो, प्यूबर्टी से teenage से puberty hit करते हो, हाँ that is the main वाला relationship, तो फिर मेरा यही था because it's like कि तुम अपने बचपन से like जब तुम एकदम immature होते हो, तुम धीरे धीरे mature होना start होते हो, तो वो कितना भी toxic होगा ना, वो कुछ भी होगा वो तुमको life टाइम याद रहेगा।
इट्स लाइक कि 10 साल बाद हो सकता है तुमको 5 में से 4 लड़कों के बारे में याद ना रहे, बट वो एक के बारे में जरूर याद रहेगा, भले वो टॉक्सिक हो, भले वो अच्छा हो। झगड़ा हुआ तो क्या हुआ? एटलीस्ट ऐसा करते कि तुम दोनों अभी एक हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप में हो। टच वुड होपफुली मेरा भी बन जाएगा। या क्या मेरे को भी गो थ्रू करना पड़ेगा कोई ट्रॉमा टू गेट इनटू लाइक ऐसा अच्छा रिलेशनशिप? होपफुली नॉट। नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे। बट यू नो दे से कि people say 19 के एज में वो and by the way मुझे apparently there's this theory of 19 which means कि 19th एज में तुम लोग किसी से मिलते हो, Get the most heartbreak. हाँ मोस्ट हार्ट ब्रेक तुम्हें वो एज में मिलता है करके, हाँ ट्रॉमा वो एज में कोई लड़का देके जाता है करके। हाँ। एंड ये मुझे किसने भेजा था? मेरे and he was a very That bitch. friend to me, नहीं friend to me. he was a hinge guy. But I hate hinge guy. No, I don't. इतना बड़ा ट्रॉमा नहीं दिया वो, बट ठीक है, he was the one that sent it to me and he did give me trauma, so fine. So basically there is this theory कि तुम्हारे लाइफ में 3 मेजर रिलेशनशिप्स होते हैं। पहला वन इज द इमेच्योर, द प्योर वाला, which is the school वाला तो प्यार। वो हो गया। मेरा भी हो गया। प्यार ही था वो, but- सेकंड वन इज द टॉक्सिक वाला, which like teaches you बहुत सारी चीजें, ठीक है। And the third one is the one. I'm having the third one right now, by the way, guys. मेरा सेकंड वन भी खत्म हो गया और सेकंड वन भी लाइक रिलेशनशिप होना जरूरी है कि It's someone you loved. It's not तो वो majorly टॉक्सिक नहीं था भाई, क्या तेरा वो- कोई टॉक्सिक नहीं था, तू टॉक्सिक। क्या वही द वन था? Guys, that's it. 7 मिनट का वीडियो बना था, it's 33 now. We'll come back with the part 2. Yes. If you guys wanna watch it, like a नहीं, part ये two, rant is like हाँ, पूरा दिन खत्म हो जाएगा लेकिन Rant खत्म नहीं होगा, और तुम लोगों को और सुनना है ऐसे। yeah. So if you all wanna watch more of such rant videos or any specific videos, do comment below. We'll try to film it. Okay. So thanks for watching. We'll see you guys in the next video. Bye bye. love you.